କେତେ ଆସିବି କେତେ ଯିବି କେତେ ମରିବି ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସନାତନ ଆମେ ସବୁ ସଂସାରର ବସ୍ତୁ। ଆମର ଆଜି କୋଉ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା? ଲେଖିଛ ନା କଣ? ଲେଖିଛ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କି? କଳିର କରାଳ ଗ୍ରାସରେ ଘଷିତ କଳି ପରାହତ ସନ୍ତପ୍ତ ପ୍ରୀତାବଧ ଅଭିଭୂତ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଆତ୍ମିକ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହିଁ କଳିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ପ୍ରକଟୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ବାହାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ବାହାର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସନ୍ତ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ସନ୍ତ ଭାଗବତ ମୁଖ ବିଗଳିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଯଦି କତିପୟ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ ଯଦି କରିବା ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି ସେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ। ଇଏ କି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ସନାତନୀ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ଏ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରକାର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବିଚାର ନାହିଁ, ଶ୍ରେଣୀଗତ ବିଚାର ନାହିଁ। ଇଏ ସର୍ବସମ୍ମତ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ଥିରୀକୃତ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ରହିଛି ପିତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଭଜନ କରିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସଦତ୍ତ ରଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖ, ସେ ବେଦକୁ ବିଭାଜନ କଲେ, ତାପରେ ଜୈମିନୀ ପଲ୍ଲୀ ବୈଶମ୍ପାୟନ ବିଭିନ୍ନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ବେଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ବିଭାଜିତ ହେଲା। ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ତ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଏ ଯେଉଁ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରିବର୍ଗ କୁହାଗଲା, ବିଶେଷ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ତିନି ଜାତି, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ପତିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଦର ଅଧିକାର ନେଇ ଶୂଦ୍ର ଜାତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସମକ୍ଷ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଇତିହାସ ରଚନା କଲେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ମହାଭାରତ ରଚନା କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ବିରଚିତ। କାହିଁକିନା ବେଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ମହାଭାରତ ସେ ରଚନା କଲେ। ମହାଭାରତରେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା, ଶିକ୍ଷା କଥା, ଜ୍ଞାନ କଥା, ଧର୍ମ କଥା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀର ଧର୍ମ କ'ଣ, ପିତାର ଧର୍ମ କ'ଣ, ପୁତ୍ର ଧର୍ମ କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ କ'ଣ, ରାଜାର ଧର୍ମ, ପ୍ରଜାର ଧର୍ମ, ଭାଇର ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ କଥା ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିছে। ରାଜଧର୍ମ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ, ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ସେ ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇପାରିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ସଂସାରର ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ରଚନା କଲି। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି କତିପୟ ନାମ ବି ସେଥିରେ ଲୀଳା ବି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପଠନ କଲେ, ମନନ କଲେ, ଅନୁଶୀଳନ କଲେ, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଭ କରିପାରୁନି, ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? ସେ ନିଜେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସାମ୍ୟପ୍ରସ ଆସନରେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାଉ କୁହାଗଲା, ସେଠି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ନିର୍ଜନରେ ବସି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭୁଲଟା ରହିଲା। ମୁଁ ନିଜେ କାହିଁକି ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଭ କରିପାରୁନି? ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇପାରୁନି ମୋ ଲେଖାରେ, ମୋ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ହେବ? ସେ ନିଜେ ଅନୁଶୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୁଲଟା କେଉଁଠି। ବହୁତ କଥା ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
कहले बोधे परमहंस महाभागवत माने जो वैष्णव पागला भगवान अच्युत के अत्यंत प्रिय परमहंस महाभागवत मानकर अत्यंत प्रिय भाग धर्म कथा वर्णना करनी जो भाग धर्म की नित्य पागला नित्य भाग धर्म भगवान प्रिय तेणु भगवान को प्रिय वैष्णव मानकर आचरित वैष्णव मानकर आदरणीय सराहनीय प्रशंसनीय ग्रहणीय आस्वादनीय जो भाग धर्म कथा मुझे वर्णना करनी तो भगवान को कथा वर्णना करनी ये बोधे मो मन भर प्रशंसा आस निजे चिंता कर परमेश्वर नारद कहे से आम भागवत वर्णना कराई तीन प्रकार भक्तिर अधिकारी अच्छा मध्यम अधिकारी लक्षण कहगला मध्यम अधिकारी कहला जे ईश्वर को प्रति प्रीति कर ईश्वर प्रति जार प्रीति थी ईश्वर भगवान भक्तमान पर जार मित्रता थी जो मैंने अनभिज्ञ बद्ध लोक मैंने अज्ञान लोक जार हृदय कृपा थी आउ विदेशी जो मैंने भगवान को विरोध कर उपेक्षा कर चारिटा लक्षण है मध्यम अधिकारी वैष्णव लक्षण ईश्वर तदधीन से बालिश दिशस्व कृपा प्रेमामयी कृपापेक्षा ज करते स मध्यम तेणु मध्यम वैष्णव माने जगत को प्रचार करते उत्तम अधिकारी माने तलू टे आसी गोटे पाँच आसी प्रचार करते कहीं जगतर लोक मान हृदय कृपा थाए संसार लोक मैंने कहीं संसार मरुँच भजन करूँ आत्म आसू हरिनाम करूँ खाली अर्थ पचर संसार पचर कहीं दौड़ जीवन टाक देवदुल मनुष्य जन्म को नष्ट कर प्रकार विचार कर मध्यम अधिकारी वैष्णव मान प्रचार कर जगत कृपा कर हरिनाम हरिकथा प्रचार कर आचार्य लीला कर लक्षण भगवान को अत्यंत भल पाती से निष्ठा सहित प्रीतिर सहित आशेष भगवान को भक्त मान प्रति मित्रता हम थाए आज मैंने भगवान विरोध कर उपेक्षा कर मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी क्या कहला जो मैंने ईश्वर को प्रीति करते ईश्वर प्रति निष्ठा थी अर्चना करते पूजा करते भक्ति भल पाते कि भक्त प्रति जा हृदय कौन समवेदना नहीं सहानुभूति नहीं दया नहीं अनुकंपा नहीं प्रीति नहीं श्रद्धा नहीं निष्ठा नहीं भक्ति नहीं कि भगवान प्रति सब थी कनिष्ठ अधिकारी कला पारमार्थ जगत में बहुत अच्छा जगत मैंने ईश्वर को बहुत भल पाइबे भक्त मान भल पाए जो भक्त भगवान जगत प्रचारित होती हृदय कौन सहानुभूति ना प्रीति ना उत्तम अधिकारी क्या कहला जो मैंने की शत्रु की मित्र की कुकर की चंडाल अश्व समस्त भितर भगवान दर्शन करेंगे सब भितर दर्शन करेंगे एक प्रकार तीन प्रकार कैडर कराई श्रेणी कराई तेणु व्यासदेव चिंता कर जो महाभारत रचना कली वेद को विभाजन कली ए कौन कली मु विशेषकर से कौन कर अनभिज्ञ लोक मान प्रति से कृपा कर ठीक अच्छे संसार लोक मैंने हृदय कृपा आसला भर कृपा आसला आ विदेशी लोक उपेक्षा से कर आउ जो दीटा लक्षण ईश्वर प्रति प्रीति अनन्य भाव आउ ईश्वर भक्त प्रति मित्रता यही दीटा से वर्णना कर पारना से निजे भावुं मु विदेशी लोक मान उपेक्षा कर संसार अनभिज्ञ बद्ध बहिर्मुख अज्ञानी लोक मान कृपा करने दया करने मो महाभारत रचना कली किंतु कि प्रकार अनन्य भाव ऐकांतिक भाव सब सबुठ मुक्त होगी एकमात्र भगवान का चरण में शरणागत है प्रीति करिया एक कथा वर्णना करि पारिनी आ द्वितीय भगवान प्रिय भक्त मान को प्रीतिभाजन करने कौन वर्णना करी तेणु जो चारिटा लक्षण मध्यम अधिकार कहगला ईश्वर को प्रीति कर भक्त को मित्रता कर अनभिज्ञ मूर्ख लोक कृपा कर विदेशी लोक उपेक्षा कर व्यास चिंता कले मुझे दीटा कली कि आउ दीटा करनी भक्त मान को प्रीति करने सहित मित्रता लाभ करने मंगल मुझे लिखिली आ भगवान प्रति अनन्य शरणागत कि मुझे लिखिपारि बोध ये बोधे मोर आत्मार वृत्ति जो आनंद मत मिलूनी चिंता कर कहीं मो आत्मधर्म रचना कर पारे एसो जते सब धर्म कथा महाभारत कहले एसो हेतु धर्म क्या कहला जो कारण थी जड़े बाहला स्त्री एक्चुअली स्वामी कर्तव्य आसला बहुत नहीं था यदि विवाह न स्त्रीपति कर्तव्य ना तार स्वामी है बोली से स्त्रीपति कर्तव्य आसला जड़े सन्तान जन्म कला पितार कर्तव्य से आसला सब हेतु कहगला जगत में जिते धर्म रही सबकि हेतुवादी धर्म हेतु धर्म कारण धर्म किंतु भगवान भजन रे हेतु रही यहाँ स्वाभाविक कहगला आत्मार स्वाभाविक धर्म हूँ भगवान भजन कर
तेणु व्यासदेव चिंता कले मु जहाँ किसी महाभारत वर्णना कले सब हेतु धर्म ए सब कारण धर्म प्रजा अच्छी राष्ट्र ପାଇଁ କିଛି କରିବ राजा अच्छी प्रजा ପାଇଁ କିଛି କରିବ स्त्री स्वयं ପାଇଁ କିଛି କରିବ स्वामी स्त्री ପାଇଁ पुत्र पिता माता ପାଇଁ पिता माता संतान ପାଇଁ ए सब कारण युक्त किंतु भगवान पछरे भजन करे पे कोई कारण ना ये तो स्वाभाविक वृत्ति जिनके जल अच्छी जल को जदि आम पकईदा से निम्नगामी हो तार स्वाभाविक वृत्ति से धर्म से जल जदि कौन ठंडा समस्या आसले बरफ होगा बरफटा कठिन धर्म होगा जल जदि अग्नि संकट आसला उत्ताप आसले तार बाष्प होगा से बाष्प धर्म होगा तो तार धर्म परिवर्तन होगा तेणु जीव जिते कौन संसार सहित संबंध रखुच्छी शरीर सहित तार धर्म भिन्न भिन्न धर्म सृष्टि होती कहला हेतु धर्म महाभारत यही वर्णना कर किंतु जीवर जीवात्मा जो कहला आत्मा कहला आत्मार संबंध रही परमात्मा सहित तारी धर्म हूँ आत्मा धर्म ताकू कहला भाग धर्म ताकू कहला जीव धर्म वैष्णव धर्म सनातन धर्म मुझे यही धर्म पर किसी व्याख्या करनी से बोले मत प्रसन्नता मिले एक प्रकार निजे चिंता कर व्यासदेव तो महान ना चिंता कर से बस नारद जी का आगमन है नारद जी से कथा ही कहले तमें भगवान ऊपर किसी स्वतंत्र प्रकरण रचना कर से भागवत रचना कले यहाँ व्यास चरित्र निजे से प्रसन्नता लाभ कले आ जगतर कल्याण करने भागवत रचना कले भागवत समस्त अधिकार रही जो मैंने जोगी माने भी ज्ञानी माने सिद्ध महापुरुष माने संसार विषयकृष्ट लोक माने भक्त मान समस्त अधिकार रही समस्त आनंद अनुभव कर भागवत भागवत गोटे आश्चर्यजनक कृति व्यासंकर समस्त अधिकार रही किंतु भागवत प्रचार करिए किए सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कले से भगवान प्रार्थना कले कहले हे प्रभु से तो सत्य सबतार से प्रभु देख आपण शक्ति दरकार जगत प्रचार करने तेणु भगवान अभिन्न प्रकाश पाई जी कि सुखदेव गोस्वामी प्रकट हेले व्यासंकर पौरुष जन्म हेले बीटिका गर्भर जन्म हेले से आम शुणीचे कहानी शुणीचे जो प्रकार अमर कथा शुणाऊले शंकर भगवान पार्वती को कैलाशर गुंफा भितर डमरू बजे सब उड़ी पड़े सब कई से नथिले किंतु गोटे अंडा गोटे सी शुणी शुणी से शावक हो छुआ से शिवजी जापारे पार्वती शोई पड़ती ये पक्षीटा हूँ करूला तेणु से तृतीय निष्पत्ति है से त्रिशूल धरले मारे दौड़े सी गला दौड़ी दौड़ी गला देखिले जमुना कूल गंगार जो व्यासंकर पत्नी धर्मपत्नी बीटिका महाराणी से कौन करते केश प्रक्षालन करते सूर्य को नमस्कार करते जलपान करने पार्टी आँ कर मुख गोर से पक्षीटा प्रवेश कला गर्भ से रहा मारे चाहिए ईश्वर आकाशवाणी है ना सी हूँ परम महाभागवत जी गर्भ स्थान पाई से तो जन्म हुए द्वारा सारा जगतर कल्याण हम से सुखदेव गोस्वाई भगवान प्रतिनिधि से मार से ईश्वर ख्यात ही चलीगले यही जो सुखदेव गोस्वामी आकर वर्णना कराई पुराण वर्णना कराई हूँ रुद्र कथा केते पुराण कह साक्षात रुद्र कहुई आउ किसी वर्णना कराई साक्षात नंद नंदन कहुई ये नंद नंदन स्वयं कृष्ण अभिन्न प्रकाश आमर आनंद वृंदावन चंद्र संपूर्ण वर्णना ये हूँ राधाराणी गोलोक लालित पालित सुख पक्षी कहुई भिन्न भिन्न सत्य वर्णना कराई ये गोलोक सुख पक्षी कहुई किंतु प्रश्न हूँ ये जब मातृगर्भ रही साधारण छुआ जन्म होले 10 मास 10 दिन जन्म हो जाए ये कौन रही पूरा 12 वर्ष रही 12 वर्ष माता से प्रश्न करते 12 वर्ष कहीं सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष कहीं रही 10 वर्ष कहीं 11 वर्ष कहीं प्रश्न उठे मन मन भर किसी पुराण वर्णना कराई 16 वर्ष कहुई किसी किंतु आमर जिते सब विश्वनाथ पाद जीव गोस्वाई पाद बड़ बड़ आचार्य मैंने वैष्णव जगत आचार्य मैंने आर ऊपर किसी कमेंट्री करना समस्त लिखिं 12 वर्ष से गर्भ रही कहीं रही जो व्यासदेव पचार हे महात्मा किए तुम से माँ को गर्भ रही माँ को कष्ट हो जल्दी प्रस्तुत हो से गर्भर थी सन्तान कहते ना ना पिताश्री मत जब आप कंडीशन सर्त करेंगे भगवान जो सर्त रखिए मु जन्म होला माया मत स्पर्श कर प्रकट है
से स्वयं भगवान प्रकट हेले से प्रतिशुद्ध हेले ठीक अच्छे प्रतिशुद्ध अच्छी तुमको माया स्पर्श कर तब प्रकट हो से जन्म हेले पर जंग प्रबोधन तो मन पे तो पैत्य कृत्य श्लोक उठागला जंग प्रबोधन मान जन्म हला पर से चलले प्रवर्ज्या हेले कोठी की जंगल को चलले उपवीत उपनयन धारण कर अव्यवहित पूर्व किसी संस्था नहीं जन्म हेले चला था जन्म छुआ कौन पशु हिसाब कौन चलो प्रश्न उठे पशु माने जन्म को चलते मनुष्य छुआ तो ठीक है हमरिया दरकार स्वयं गुरु स्वयं राम बलराम भगवान भी कर राम बलराम कृष्ण मध्य से सब हमगार गुरु से तो सुखदेव गोस्वाई कहीं चलले उठे एत आम टीकाकार किसी जन कहते ये जो जन्म होला पर से चलले तार अर्थ से चलिया सक्षम होते मातृगर्भ चलिया केमती सक्षम होते से कहगला 12 वर्ष शब्द लगे 12 वर्ष हूँ कैशोर अवस्था बाल्य पौगंड तापर कैशोर बाल्य पौगंड ज्ञान एत न थाए बाल्य बाचाल जान परिपक्व बुद्धि न थाए बाल्य पौगंड कैशोर अवस्था 10 ରୁ 15 वर्ष 16 वर्ष कह जो अवस्था कृष्ण लीला करते से अवस्था प्रकृत ज्ञान आस प्रकृत मान पूरा उद्दीप्त नव जौवन जाओ कहगला चेहरा आस युवक अवस्था जाऊ पूरा यूथ कहुए कैशोर अवस्था से अवस्था से प्राप्त होते कौटी गर्भ भितर तेणु तो प्रकट हेले से चलले जंग प्रवजनते मन को प्रत्येक कहगला तापर सब देखा ये जाऊँच व्यासदेव पछरे दौड़ नदी कूल देखले ब्रजांगना मान विशेष देवांगना मान सब स्नान कर सुखदेव गोस्वामी तो चलते देखी से किसी मन कौन विकार आसे व्यासदेव जो गले से मन भितर लज्जित हो गए व्यासदेव प्रश्न कले गोटे आश्चर्य कथा मोर 16 वर्षर पुओ युवा पुओ जो गला जहाँ पूरा अंग शस्त्र पूरा यौवन उद्दामता रही पूरा परिपुष्ट नहीं दर्शन कर तो मन भर विकार आसलानी गोटे वृद्ध महात्मा मत तुम लज्जित हो कहले ना सुखदेव गोस्वामी विचार ना स्त्री के बापा पुरुष स्त्री मान कहते से निर्विकार पुरुष से तार मानना जे व्यासदेव विकारग्रस्त शिक्षा हमको दिया माने जहाँ को जगत में भागवत प्रचार करला से महापुरुष किस प्रकार वर्णना से विकारग्रस्त स्त्री पुरुष विकार विचार किसी ना संसार भीतर किसी विचार है ना इतने कहे विशेषकर परिनिष्ठित नैर्गुण्य उत्तम श्लोक मिलेगा परिनिष्ठित नैर्गुण्य परिनिष्ठित माने जे कि ब्रह्मनिष्ठ साधक थे जे कि आत्माराम पुरुष थे जहाँकर संसार गतिर ऊर्धर जी अच्छा विशेष जार कौन संपर्क ना कौन संपर्क ना दिगंबर वक्र विकीर्ण केश प्रलंब बाहु मान कह दिगंबर वेश माने वस्त्र धारण कर दिगम माने आकाश जार वस्त्र कहला दिगंबर वेश विकीर्ण केश विपर्यस्त पूरा प्रलंब बाहु पूरा आदान लंबित बाहु अलग लिंग निजलाभ उत्कृष्ट कौन चिन्ह माली आम सब चिन्ह किसी नाला किंतु निजलाभ सब निज भर संतुष्ट रोते कहीं भगवान चिंतन से कि प्रथम से कौन थे जो चलले प्रथम गले कौटी गले जंगल गले भगवान तो कौन से तो माया स्पर्श करनी सीधा जंगल गले से ब्रह्म साधना कले माने जो निर्विशेष ब्रह्म जो कह ब्रह्म चिंतन कर भगवान को चिंतन करना भगवान अंग ज्योति जो ब्रह्म ज्योति ताको चिंतन कर सी आध्यात्मिक जगत गोटे पहाच कह मन ना से आनंद मिले कहीं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नोषच न कांक्षति सम सरेश भूतेषु कोठी ब्रह्मभूत प्रसन्नता ब्रह्मभूत माने ब्रह्म जो मान लीन नहीं विशेषकर ब्रह्मनिष्ठ साधक जो माने सब प्रसन्न रुहति प्रसन्न रुहति कौन सी आकांक्षा ना कि शोचना नहीं से माने समस्त भूतेषु मध्य लभते प्राण से माने कौन करती ब्रह्मनिष्ठ साधु जो ब्रह्म तल्लीन हो डूबी गए कौन सी जागतिक आकांक्षा नहीं वासना नहीं कामना नहीं आ से समस्त भितर समान भाव दर्शन करती समस्त सर्वेशु भूतेषु सारा जगत समस्त भितर से ब्रह्म को दर्शन करती और शेष परवर्ती समय देखा से मधुभक्त होते प्रताप भक्ति पथ को उत्तीर्ण होवार संभावना रही
तेणु सुखदेव गोस्वामी से प्रकार ब्रह्मनिष्ठ साधक थे प्रथम भक्ति मार्ग से आसी नथिले आम से कहटा भूल हो अपराध कि शिक्षा दी जाए माने ब्रह्मनिष्ठ साधक मध्य आत्मार रमण कर साधक मान जो मान संसार सहित कौन संबंध ना जो मैंने संसार प्रति वैराग्य पूर्ण वैराग्य आसी विषय कामना वासना जो कि ना विकार ना जो मैंने भगवान के से ब्रह्म स्वरूप चिंतन कर आनंद रोचंती से प्रकार महात्मा माने भी बेले बेले देखा जाए भक्ति मार्ग को आसछंती तार बलिष्ठ उदाहरण होचे सुखदेव गोस्वामी। तो आम जिते सब निर्विशेषवादी शंकरपंथी सब ब्रह्मलीन जो देखिए उत्तराखंड जिते सब रही ब्रह्म साधक माने से शिक्षा कोटि कोटि गुण रे प्रशस्त मार्ग हो जीव आत्यंतिक कल्याण मार्ग हो भक्ति मार्ग तेणु कहते परिनिष्ठ तो निर्गुण्य माने जो ब्रह्म निष्ठ थिले मध्य आत्मार रमण करुले संसार सहित कौन विकार नथिले ब्रह्म चिंतन डूबी थिले उत्तम श्लोक लीला भगवान से उत्तम कथा ठाकुर जी कथा शुणिले से कृष्ण कथा शुणिले शुणिला पर कौन हेले गृहित चेष राजसे राजर निजे परीक्षित महाराज से कहते सुखदेव गोस्वामी हरिकथा तो आरंभ कले परीक्षित महाराज कहले परीक्षित मु प्रथम ब्रह्मनिष्ठ साधक थी भक्ति मार्ग को आसी नी मो तो निध्यासन संपर्क समाधिस्थ अवस्था मुझे जंगल में किंतु व्यासकृत मो पिता द्वारा रचित भागवत कतिपय श्लोक श्रवण कलापर मोर चित्त मत आकर्षित होगा से ब्रह्म चिंतन को बंद करी मुझे भगवान नाम रूप गुण लाभ डूबिक रही तो यही हूँ भक्ति मार्ग बलिष्ठ उदाहरण सुखदेव गोस्वामी ये 12 वर्ष कहीं रही तार उदाहरण हूँ कहुई 12 वर्ष गोटे न्यूमरेज का मान संख्या गोटे ठीक पॉइंट आउट कहीं कर 12 वर्ष हूँ द्वादश आदित्य रही 12 वर्ष रही 12 मास रही विशेषकर ओम नमो भगवते वासुदेव द्वादश मंत्र रही तेणु 12 संख्याटा गोटे वैदिक संख्या आ विशेषकर वैष्णव साहित्य कही 12 वर्ष यदि कौन किए साधन कर सिद्धि प्राप्त हो वैष्णव इतिहास वैष्णव साहित्य वर्णना कर 12 वर्ष कले सेवा गुरु कहले किस देव सीधा ओडिया कहुई 12 वर्ष यदि सेवा कर गुरुदेव किसी दिखती जब 12 वर्ष जन जेको साधना कर 12 वर्ष खाली मन रू से कथा कहनी 12 वर्ष देखिए तापर जो से पार्टी खुले से जहाँ कहता सत बाक्सी दिया 12 वर्ष गोटे संख्या 12 वर्ष तेणु सुखदेव गोस्वामी जेको साधन देख जेको जी भक्ति मार्ग जो मार्ग नियम गुड़िक संकल्प कर 12 वर्ष साधन करी 12 वर्ष हरिनाम करी 12 वर्ष भागवत पढ़ी 12 वर्ष अर्चन करी नियम निष्ठार जहाँ सब करवा दरकार जड़े नॉनस्टॉप जदि माने करियो कौन व्यवधान रही है कर 12 वर्ष पर तार गोटे पूर्णता प्राप्ति तेणु सुखदेव गोस्वामी कौन करते साधक स्थिति थी गर्भ से गर्भ से साधन करते माया को जय करने गर्भ भितर 12 वर्ष रही से भगवत चिंतन करते तेणु से सिद्धि प्राप्त आसला महापुरुष से प्रकट से भगवान को डाकिले भगवान कंडीशन के लिए तो लीला कहुई कि वास्तव में से जन्मजात सिद्ध महात्मा राधाणी का लालित पालित सुख पक्षी भगवान को प्रतिनिधि स्वरूप से नंदनंदन कहुई 12 वर्ष रही आमको शिक्षा दे 12 वर्ष यदि कौन साधक साधन कर भी सिद्धि प्राप्त हो आम 12 वर्ष कौन कर एकादश 2-3-4 अधिक माला कर माला धरना मैंने एकादशी आसगला आज एकादशी भल टे नाम करा दिन केत पारण हम देखा माला धर ना तेणु 12 वर्ष शब्दटा ये रखाई साधन स्टेज था गर्भ भितर शुद्ध होते विशुद्ध अंतरना ये तेणु से संख्या को गुरुत्व दे टीकाकार मैंने आप किसी मंतव्य देना खाली वैष्णव साहित्य कही 12 वर्ष गोटे निर्दिष्ट संख्या साधक मान भक्त मान ये गोटे उपचार मान जाओ पुरस्रण जहाँ कहुई से प्रकार विधान ये रखाई तेणु सुखदेव गोस्वामी से प्रकार संख्या को धारण करते 12 वर्ष गर्भ से जब से आस सारा जगत को जय कर से तो ब्रह्मचिंतन डूबिक रही से व्यासदेव तो भगवान को प्रार्थना कले ये तो सुखदेव से प्रकट हेले चलले तेणु ये और चिंतित हेले अरे बाबा मुझे तो भगवान को प्रार्थना कली आसी कि ये फेरिक आस जगत प्रचार हो पार
ମୁଁ ଲେଖିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ ଭାଗବତ ଶ୍ଲୋକ ଯାଉ ଶିଖେଇଲେ। ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥର କହିଛି ସେଇଟା, କହିଲେ ତମେ ଯାଇକି ଏସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ଯଦି କିଏ ଆଗ୍ରହୀ ହେବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସ। ତେଣୁ ଆମେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିଲେ, କେହି ମିଳିଲେନି। ଶେଷରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ସେ ଡାକିଛନ୍ତି, ପଚାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏମାନେ କହିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯେ କୁହାଗଲା ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଲୀଳାୟା ପରିନିଷ୍ଠ ତେବେ ନିର୍ଗୁଣ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ସାଧକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ରହୁଥିବା, ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ ଡୁବିଥିବା ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳା, ନାମ ଏସବୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଦିଏ। ତାର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା? ଚାରିଟା ଶ୍ଲୋକ କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ ଆମର ଯେମିତି ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସ୍ତମ୍ଭନ, ବଶୀକରଣ, ସମ୍ମୋହନ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ଚାରିଟା ଅଛି ଏସବୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାଗବତର ଚାରିଟା ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବଶୀକରଣ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ସମ୍ମୋହନ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ଯାହାକି ଏଇ ଚାରିଟା ଶ୍ଲୋକ ବ୍ୟାସଦେବ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ସେ ଚାରିଟା ଶ୍ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ରଖାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ମାଧୁରୀ, ଗୁଣ ମାଧୁରୀ, ଲୀଳା ମାଧୁରୀ, ପ୍ରେମ ମାଧୁରୀ। এই চারিটা শ্লোক বর্ণনা করা হয়েছে। এই চারিটা শ্লোক শুনলা পরে সুখদেব গোস্বামী রিଟর্নরে ব্রহ্মচিন্তনକୁ ফাইল ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେଇଠି, ଦୌଡ଼ ପଡ଼ି ଉଠିଲେ, ଚାଲେ, ଆରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣି। ରୂପ ମାଧୁରୀ କ'ଣ? କୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ? ବ୍ରହ୍ମଜ ସ୍ତବ କରିଥିଲେ। ନୈମିଦ୍ୟତେ ଭବକୁ ସେ ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟ ଗୁଞ୍ଜବତଂସ ଶିଖିର ସନ୍ମୁଖା ଶିଖି ପିଛିଲ ସନ୍ମୁଖାୟ ବନ୍ୟସ୍ରଜେ କବଳ ବେତ୍ର ବିଷାଣ ବେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ରୀ ମୃଦୁ ପଦେ ପଶୁ ପଙ୍କଜାୟ। এই শ্লোকটা ব্রহ্মার উচ্চারণ করতে হবে। এটা হলো রূপ মাধুরী। এতে কোন রূপ বর্ণনা করা হয়েছে? ঠাকুরজি যেତେବେଳେ ଗୋଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଛାମାନଙ୍କୁ, ତା ପୂର୍ବ ଲୀଳା ହେଉଛି ଅଘାସୁରକୁ ଠାକୁରଜୀ ବଦ୍ଧ କଲେ, ସଂହାର କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଅଘାସୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଆକାଶରେ ସବୁ ଗୁନ୍ଦୁଇ ବାଜିଲା, ଦେବତାମାନେ ପୁରା କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ପୁରା ଜୟ ଜୟକାର ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରି ଦେଲା। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ଦେଖିଲେ ସାରା ଦେବତାମାନେ ପୁରା ଛାଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ। ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ବାଲଗୋପାଳ, ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ, ଏ ଯେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଯେ ଛଲିଆ, ଇଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଟାଣିରେ। ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଅଘାସୁର ମରିକି ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିଥିଲା, ସ୍ଥିର ହେଇଥିଲା। ସେ ଜ୍ୟୋତିଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣରେ ଲୀନ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖିଲେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇଏ କି ପୁରୁଷ? ଅଘାସୁର ତ ମଲା, ଠିକ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ଯେ ନିଃସୃତ ହେଲା, ସେ ଯେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଲା ଶୂନ୍ୟରେ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲା କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅଘାସୁର ମୁଖରୁ କୃଷ୍ଣ ବାହାରିଲେ, ସେ ଜ୍ୟୋତିଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଇଏ ପୁରୁଷଟା କିଏ? ମୁଁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମିନା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଦେଇଟା। ବ୍ରହ୍ମା କହନ୍ତି ଲୀଳା କରେ ସେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, କିଛି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ଦେଖ କାହ୍ନୟା ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଖାଇବା। ସବୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ କଦମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ଲୀଳା, ପଙ୍କ୍ତି ଲୀଳା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୀଳା। ସେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଯମୁନା ପୁଲିନ୍ଦରେ ସେ ବ୍ୟାସାସନଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ହମ୍ବା ବା ରଣୀ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିପାରିବେ, ପାଖରେ ଚରିବେ, ସେମାନେ ଚାରଣ କରିବେ। এই ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ, ବାଛୁରୀ ଚୁରି ଧରି ପଳାଇଲେ। ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ହସ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା, ସେ ସମୟ ନାହିଁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାନି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଚୁରି ଧରି ପଡ଼ିଲେ, କିଛି ଶୁଭିଲାନି ସେମାନଙ୍କୁ। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ବାଛୁରୀମାନେ କହିଲେ, ହୁ ହାଲେ କଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତମ ବସ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଗଲେ, ଖୋଜିଲେ, ମିଳିଲାନି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚୁରି ଧରି ପଳେଇଲେ। ସେପଟେ ବାଛୁରୀମାନେ ଗାୟବ, ଏପଟେ କୃଷ୍ଣ ଫେରିଲେ, ଦେଖିଲେ କଦମୂଳ ଶୂନ୍ୟ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାୟବ। ଇଏ ବୁଝିପାରିଲେ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ ଲୀଳା କଲେ, ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରକଟ କଲେ ସବୁ ଯାହା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଏକା ଫେରିବି, ମୋତେ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ, ବ୍ରଜମାମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେନି। ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସାଥିରେ। ଆଉ ଗୋମାତାମାନେ ବି ମୋତେ ରଖେଇବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ସବୁ ଗୋମାତା, ସବୁ ବ୍ରଜର ମା ମାନେ ମୋତେ ନାକେଦମ କରିଦେ, ପଚାରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଛୁଆ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତେଣୁ ନିଜ ଶରୀର ସେ ପ୍ରକଟ କଲେ, ସେ ବାଛୁରୀ ରୂପରେ, ସଖା ରୂପରେ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ସମାପନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୋହନ লীଳା, ବ୍ରହ୍ମା ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଆଉଥରେ ସେ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସହିତ। ସେ ଖାଲି ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏଇ କାମ କଲାନି, ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ଅରିଜିନାଲି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୋହନ ଲୀଳା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୋହିତ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କୃପା କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ସାରା ସବୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁମୟ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ସେଇଠି ତାପରେ ସେ ପରକ୍ଷଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆଉଥରେ ସେ ହାତରେ ଦଧି ଧରିଛନ୍ତି, ଆଚାର ଧରିଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନଦୀ କୂଳରେ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ। ରୂପଟା ବନ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ନୌମି ଡେ ସେ ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟ କହିଲେ, ନୌମି ଡେ, ନୌମି ଡେ ମାନେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସ୍ତୁତିର ଯୋଗ୍ୟ ମହାରାଜ। ଯଦି ଜଗତରେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରେ, କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ କି ଭୌତିକ ଜଗତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଯଦି କିଏ ସ୍ତୁତିର ଯୋଗ୍ୟ, ସ୍ତବର ଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଗ୍ୟ, ବନ୍ଦନାର ଯୋଗ୍ୟ, ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଯୋଗ୍ୟ, ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସର୍ବାଗ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଏଥିପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରାଜସ୍ୱ ଜଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କିଏ ପାଇବ? ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ ଛଡ଼ା କୃଷ୍ଣକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ, କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଇଏ। ନୌମିଡିତେ ପ୍ରଭୁ ବପୁଷେ ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟ। ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି ବିଶେଷ କରି ଘନ ନୀଳ ନବଧର ଜଳଦ ଭଳିଆ ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଯେମିତି ନୀଳ ଆକାଶ ଯେ ପ୍ରକାର, ନବ ମାନେ ନୂଆ ମେଘ ଯୋଉ କୁହାଗଲା, ନବଜଳ ଧରକାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସେଥିରେ କ'ଣ ହଉଛି? ନୀଳ ଆକାଶରେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ ବିଜୁଳି ମାରିଲେ କି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ? ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟ, ଆଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନବଜଳ ସଦୃଶ ଶ୍ୟାମଳ ଶରୀରରେ, ଘନ ନୀଳ ଶରୀରରେ ସେ ପୀତାମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ଆକାଶ, ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚମକୁଥାଏ, ଝଟୁଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୀୟ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀତାମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ସେ ଘନ ନୀଳ ଶ୍ୟାମଳ ଶରୀରରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। ନୌମିଡ୍ୟତେ ପ୍ରଭୁ ସେ ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟ, ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟ କୁହାଗଲା। ଗୁଞ୍ଜା ବତଂସ ଶିଖିପିଛଲ ସନ୍ମୁଖାୟ। କର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଗୁଞ୍ଜା ବତଂସ, ବତଂସ ଗୁଞ୍ଜା ଫୁଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଗୁଞ୍ଜା ମାନେ ସେ ଚୁମୁକି ଭଳିଆ ଫୁଲ ସବୁ, ଗୁଞ୍ଜା ବତଂସ ଶିଖିପିଛଲ ସନ୍ମୁଖାୟ। ମୁଖରେ ମସ୍ତକରେ ସେ କ'ଣ ଶିଖି ପୁଚ୍ଛ ମାନେ ମୟୂରୀ ପୁଚ୍ଛ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ମୟୂର ପିଛ ଧାରଣ କରି ଗୁଞ୍ଜା ପୁଷ୍ପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ପୀତାମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଘନ ନବଜଳଧର କାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମୁସ୍କାନ ହସ, ତାଙ୍କ ମୁଖର କିନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ସନ୍ମୁଖାୟ, ତାଙ୍କ ମୁଖର ଜ୍ୟୋତି ନା ଅଧଭାସିତ ହେଉଛି, ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବନ୍ୟ ସଜେ କବଲ ବେତ୍ର ବିଷାଣ ବେଣୁ। କବଲ ମାନେ ଦହି ଅନ୍ନ ସେ ଧରିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଦହି ଅନ୍ନ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଆମ୍ଭଳିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପୁନ୍ ଦରକାର ନଥିଲା କି ପ୍ଲେଟ୍ ଦରକାର ନଥିଲା। ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଚାମଚା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଟ୍ରେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ସେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସନ୍ଧିର ଆଚାର ବି ଧରିଛନ୍ତି। ମା ଆଚାର ପଠେଇଥିଲେ, ପିଲୁ ଆଚାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଚାର। ଦହି ଅନ୍ନ ହାତରେ, ଆମକୁ ସନ୍ଧିରେ ଦହି ଟିକେ ଖାଇଲେ, ଆଚାର ଟିକେ ଖାଇଲେ। ଏଇ ଆଉ ବେତ୍ର ବିଷାଣ ବେଣୁ, ତାଙ୍କର ବେତ୍ର, ତାଙ୍କର ବେଣୁ, ଏସବୁ ସେ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି? ସେ କମରରେ ଖସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଦି ବଗଲରେ ଖୋଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁରଲି ବି ଖୋଜିଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ସବୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କବଳ ବେତ୍ର ବିଷାଣ ବେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ରୀ ମୃଦୁପଦେ କଶ୍ୟ ପଙ୍କଜାୟ। ତାପରେ ମୃଦୁପଦେ ସେ ତାଙ୍କର ଅତି କୋମଳ, କୋମଳ ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁକୋମଳ ସେ ଚରଣରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କଶ୍ୟ ପଙ୍କଜାୟ, ଯିଏକି ସେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ। ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ବ୍ରହ୍ମସ୍ତୁତି କଥା। ଏଇଟା ହେଲା ରୂପ ମାଧୁରୀ। ଏଇ କଥା ତ ଶୁଣିଲେ କିଏ? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ କରି ଡୁବିକି ଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଆରେ ବା, ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତାପରେ ସେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତା କଲେନି, ଚୁପଚାପ ବସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆଉ କ'ଣ ଏସବୁ କ'ଣ ଲେଖିଛ? କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର? ନୂଆ ଶାସ୍ତ୍ର ନା ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର? ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ନୂଆରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଏଡିସନ୍। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ବ୍ୟାସଦେବ। ବ୍ୟାସଦେବ ମୋର ବାପା, ସିଏ ପିତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ମହାରାଜ ବହୁତ ଅଛି। ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନରେ ଡୁବିକି ଥିଲି, ବ୍ରହ୍ମରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା,
जदि खाली गोटे ता रूपटा को देखी जीवी जदि रूप सहित गुण नथियो देखिया पे राजकुमार हेतियो झीड़ा को दे मधुड़ा हेतियो गुण थिया दरकार ना आजिकल बापा झील सिलेक्शन कर बर सिलेक्शन कर तार बाहर रूपटा देखुं चाकरी केते करछि दरमा केते मिलुछि खानदानी कौन रूपटा कौन देखुं जदि गुणटा नथियो सुखदेव गोस्वामी नाम भलिया नथिले ना से रूप सहित गुण भी देखिया पाए चाहिए से कहले रूपटा ठीक सुंदर किंतु गुण जदि नथियो आउ कौन देखो तार गुण माधुरी कथा कहला अहो बकीजं स्तनकालकूटं जिंगासाय यदप्यो सखि लेभे गतिं धत्रिचितं ततोन्यं कंगा दयालं शरणं व्रजम एटा को गुण माधुरी बुझी टीका माने कौन गुण ठाकुर हेले अहो बकीजं अहो माने कि आश्चर्य देखो बकी माने बकासुर भौणी जी की पुतना कहला बकासुर भौणी की बकी कहै ताकू पुतना कहला जो पुतना की निजर स्तन रे निजर पैधर रे हलाहल विष को लेपन कर आसला उद्देश्य थिला नंदन नंदन बाल गोपाल को दुग्धपान छल रे ताकू मारदा से आसला अभिप्राय करी कृष्ण कंसर दूत से दूती कंसर ओ बकी जो स्तनकाल कुटम जी की पुतना जो बकी जार कौन सी पुण्य भी नथिला मांस खाऊला शिशु मांस रुधिर पान करतला हाड़ चुबौला शिशु हत्या करतला एई जो पुतना बकी स्तन कालकूट स्तन तार कालकूट विष लेपन कर जिघांसाय माने कृष्ण को मारिया पे जे आसला ताकू ठाकुर जी कौन कले लेभे गति धात्री चितं तत अन्न ताकू कौन देले की गति देले धात्री पद देले माँ पद ताकू दे देले कहीं तार भल लक्षण देखले से मातृ स्वरूप आसला नारी रूप से आसला माँ मान छुआ को कलाकृत देखते से भाव से कलाकृत करता उद्देश्य मारिया पे थिला तार जो भंगी तार जो झांकी मातृ झांकी थिला तेणु यही गोटे लक्षण ताको देखिले ठाकुर जी ताको माँ पद्धति गोल करे तेणु कंबा दयालु शरण ब्रजम एक प्रकार दयालु ब्रजरे किए अच्छे सारा संसार जी की विश्व मारिया विश्व दे कि मारिया ताको माँ पद दौरान आज जी भजन करे से कौन एणु ब्रह्मा प्रार्थना कर हे प्रभु तुमको पुतना जी की केवे भजन करनी भजन गंध ही ना जा पाखे दुर्गंध सब तुमको मारिया से आसला माँ पद देदेल आ जो गोमाता मान तुम दुग्धपान कर जो ब्रजांगना मानकर गोपी मानकर यशोदा माँ देवकी रोहिणी माता यही माँ मान सब दुग्धपान कर तुम ये माँ ओरिजिनल माँ कौन दो तुमको देकर ऋणी बोले ठाकुर स्वीकार कर रास्ता ऋणी कारण पार देवाई किसी ना मुझे को बिक्री कल ऋणी ठाकुर जी कहते निजे को बिक्री कल सब बिक्रीते स्वात्पन्न कर बिक्रीते माने निजे को बिक्री कल ऋणी तेणु एक प्रकार दयालु किए अच्छे जगत रे कृष्ण सहित दयालु जगत रे कहीं ना वास्तव कंबा दयालु शरण ब्रज कहला मु कार शरण नेबी इनके दयालु थाउ थाउ एमन दयालु दाता आर के अच्छे चैतन्य वन में कहते ना एक प्रकार दाता किए अच्छे दयालु आम खाली मूर्खा भाया जाऊे यही मंदिर को सही मंदिर को यही ठाकुर को सही ठाकुर ये सब आम अविवेकितार परिचय अज्ञानतार परिचय आम प्रकृति से प्रकार सिद्धांत आम जापारे आमको शिखुना कृष्ण ही सर्वेश्वरेश्वर नंदन नंदन सब किसी मूलाधार से तेणु एमती दयालु जगत क्या पाखे सब देवता मान सब स्वार्थी आज्ञा इंद्र को पूजा करा कृपा करते नंद बंद करदे कृष्ण कथा शुणी इंद्र पूरा डुबेदा चले नंद ब्रजड़ा ये देवता मान लक्षण या जिते देवादेवी जगत अच्छा समस्त यही प्रकार किंतु ठाकुर जी आमर ये गाली कले बर नंदी को गाली कले चले गाली न कले चलती पूरा ना गाली कले चलती ना तेणु भगवान भक्तर सबकि ग्रहण करते पूजा कले प्रसन्न पूजा न कले से और बेसी कृपा करेंगे प्लाटफर्म तैयारी करेंगे जिन संतान अबाध्य संतान अयोग्य संतान प्रति पितामाता सब चिंतित था कि तार मंगल और बुद्धिर सुधर एक जगत पिता करुणा वरुणालय से भगवान आम भाई अधम संतान सब चिंतित था तेणु से सब मंगलमय सब विधान कंबा दयालु शरण ब्रज एक प्रकार दयालु जगत किए अच्छा जार शरणागत है एकमात्र शरणागत बुद्धिमान लोक मैंने शरणागत है मार वीरा जो इच्छा तारा नित्य दासक दया अधिकार प्रभु तुम ही मोर सब ये शुणिले रूप भी ठीक अच्छे गुण भी ठीक अच्छे एथर जा दरकार तापर इंटरेस्ट है आउ शुणा दरकार
रूप तो गुण अच्छी तार लीला कौन से देखा से कि लीला करते ना जो एत बड़ पुरुष सी गुण भी सुंदर रूप तो बहुत सुंदर पूरा त्रिभुवन कमली रूप पूरा आ गुण भी ठीक अच्छे लीला कौन कर लीला श्लोक उठेले बराहा पीडं नटवर बपु कर्णय कर्णिकार विव्रत वास कनक कुशम वैजयंत चमालम रंध्राण वेणु अधर सदया पूरेन गोप वृंदे वृंदारण्यं सपद रमण प्राविशद गीत कीर्ति टीकाकार मान इस श्लोक को कहते एटा लीला माधुरी परक स्वरूप एथे कौन लीला बराहा पीडं एथे बोध रूपटी वर्णना कराई किंतु लीला बोली कहा जाय कहीं सपद रमण प्राविशद गीत कीर्ति सखामान द्वारा परिवेष्टित हुई सखामान द्वारा परिवेष्टित होगी ठाकुर जी कौन करते बाल श्याम सुंदर आमर से सखामान द्वारा परिवेष्टित गीतर ताले ताले ये मुरली मूर्छनार ताले ताले ये थे थे नाची नाची वृंदारण में प्रवेश कर लीला कह गोधूली लगन से फेरुंट गोचारण कर रूपटा वर्णना कराई बराह पीडम जी की मयूर पिछर मुकुट धारण कर बराह पीडम नटवर जहाँ रूप हूँ नटवर पूरा नाट भाया त्रिभुवनी खाने छिड़ा सीधा छिड़ा पारे तेड़ा ये पूरा पोजिशन पूरा बंका बंका चाणी बंकी महाधार नटवर नाटुआ बेस छिड़ा कर्णय कर्णिकार जी कर्ण कन्यार फल धारण कर विव्रत वास कनक कपिश ये प्रकार वस्त्र धारण कर कनक मान सुवर्ण को जी प्राभुत कर वस्त्र ज्योति कहगला वैजंती माला धारण कर वैजंती माला अधर जे वेणुर मूर्छना को पूरण कर अधरामृत को जे निजर वंशीर वेणु रंध्र पुरय रंध्राण वेणु अधर सुधया अधर सुधा मान अधरामृत को जी कि वेणु रंध्र पूर्ण कर मुरली मूर्छना कर वेणुनाद कर समय सखा मान गीत कीर्तन कर सखा मान आज ठाकुर जी क्या मारे कि बध कले वृंदारण्यम सपधर्म प्राविशद गीत कीर्ति सखा मान परिवेष्टित मुखर मुख विगलित कीर्तन ताले ताले मुरल मूर्छनार ताले ताले ठाकुर जी थे थे नाची नाची वृंदारण्य में प्रवेश कर दर्शन करने गोपी मान पूरा सका संज पर्यटन चकोर भाया चकोरी भाया प्रतीक्षा करते पूरा अपलेक अवलोकन दर्शन करने ठाकुर जी पलक पड़ता लीला की प्रकार से प्रवेश कर शेष आसला आउ गोटे श्लोक प्रेम माधुरी प्रथम रूप माधुरी गुण माधुरी लीला माधुरी प्रेम माधुरी चारिटा श्लोक जहाँ ये चारिटा श्लोक जहाँ कला प्रेम माधुरी प्रथम रूप माधुरी हूँ वशीकरण बाजा वशीकरण उच्चाटन स्तंभन शेषटा हूँ सम्मोहन मोहित कर ये श्लोक हूँ गोपी गीतर प्रथम श्लोक जयति तेधिकं जन्मना ब्रज स्तयत इंदिरा ससदोत्रयी सब जान भगवान सम्मोहन कहला विशेषकर मोहित कर लीला ये प्रेम माधुरी एथे क्या गोपी गीत खाली प्रेम माधुरी कहला गोपी माने कृष्ण विरह विरहिणी हुई कृष्ण विरह माथुर विरह विरहिणी 300 कोटि गोपी किशोर जी के स्वामिनी को सामना सम्मुख रखी जमुनार पुलिन क्रंदन कर कृष्ण दर्शन लालता तीव्र तीव्रतर अंतकरण प्रेम उद्गार उद्गीर्ण जमी लाभा बाहर भूमिकंप उद्गार कहगला चित्कार एटा प्रेम मधुर जयती ते जन्मना ब्रज कहले हे श्याम सुंदर ब्रज तो सबुठ अधिक सुंदर ये कि तमें जो प्रकट है ना तुम प्राकट्य पर ये वैकुंठ होगा अधिक महाराज जयति तेधिक जन्मना ब्रज ब्रज तुम जन्म पर ठारू वैकुंठ अधिक होगा अत्यंत आदरणीय से कहीं स्वयं इंदिरा
इंदिराडी नृत्य कर इंदिरा मान लक्ष्मी स्वयं नृत्यांगना नृत्यरता जो लक्ष्मी नृत्यरता जो ऐश्वर्य अधिकारी अधीश्वरी कहुई ये जेहेतु तुम्हें प्रकट हो जन्म हो सी नृत्यांगना कर ब्रजर माधुर्य ब्रजर ऐश्वर्य ब्रजर वैभव अवर्णन्य कहुई सब प्रेम मधुर कहगला चारिटा श्लोक शुणिला सुखदेव गोस्वामी रही ना ठाकुर जी गुण शुणिले रूप कथा शुणिले गुण कथा शुणिले लीला कथा शुणिले कि प्रकार गोपी मान प्रति गोपी मैंने अन्य हर प्रीति कर प्रीतिर प्रतिदान ठाकुर जी कि प्रकार प्रदान कर प्रेम प्रदान कर प्रकार से श्रवण कर सारा सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म चिंतन को पूरा बंद करदे फाइल क्लोज करदे सीधा छिड़ा हेले दौड़े बापा पाखु कहले मु तुम पुत्र मत तुम संपत्ति अधिकार मोर अच्छी पितार संपत्ति पुत्र अधिकार अच्छी तेणु पिताश्री आप से दुर्लभ अमूल्य अनमोल चीज संपत्ति जो भागवत मत प्रदान कर तो आश्चर्य कहले अरे बाबरे जो पुत्र जन्म लाभ मो हा पुत्र को दौड़ी थी जे कि मत पछक भी चाहिए देख बापाटा डाकुचे जन्म है जे कि प्रवर्ज्य होता पचर मु बात्सल्य भाव में विगलित मो हा पुत्र मुख दर्शन करने पूरा पागल भाया पचर दौड़ी वृद्ध वार्धक्य अवस्था जो पुत्र मत पछक धरी चाहिए नाला कि आज देख भागवत की महिमा से फेरत अपहृत पुत्र को आज रास्ता को टाणी फेर के नहीं आर्थ जगत एमती कौन सी समस्या ना जगत रे एमती एक प्रकार कौन सी कार्य ना असाध्य कार्य ना जहाँ भागवत द्वारा समाधित न हो संशोधित न हो जो पुत्र को आशा छाड़ देते से पुत्र फेरिक आसला तेणु कहले जय हो भागवत महाराज किसी निजे जय जयकार कले भागवत ये हूँ सुखदेव गोस्वाई चरित्र जाओ तो प्रश्न भी कले तेणु सुखदेव गोस्वाई वास्तव में उदाहरण दिन चतुसनक कहगला चतुसनक मध्य ब्रह्मांकर चारि कुमार सनक सनातन सनंदन सनत कुमार एमान ब्रह्मनिष्ठ साधक थे 5 वर्ष बयस बालक से माने सब ब्रह्मचिंतन रोते जो अंतरिक्ष परिभ्रमण कर वैकुंठ भगवान चरण में अर्पित चंदन चर्चित सुशोभित से तुलसी सुगंध को जो आघ्राण कले से गतिपथ बदलीगला जो जाऊे कहले चलो वैकुंठ जी माने भगवान का चरण में अर्पित चंदन चर्चित शोभित से तुलसी मकर स्वाद माने सुगंध को आघ्राण जो नासा प्रवेश कर भक्तिर विकार आसी माने ब्रह्मनिष्ठ साधक चतुसनक मान हृदय भगवान चरण अर्पित तुलसी सुगंध द्वारा चित्त विगलित हो वैकुंठ आसले भगवान को दर्शन करने प्रकार उदाहरण हूँ जगत रे कृष्ण के प्रति आकर्षित जगत किए हेले समस्त आकर्षित आत्मारामश्च मन्य दिगंत अपुरीक्रम कहगला आत्माराम आत्मारे रमण करुवा मुनि माने भगवान प्रति आकर्षित होता रूप एत सुंदर गुण एत सुंदर लीला एत सुंदर प्रेम माधुरी सब किसी सुंदर सी कथा जो शुणती कथा जो चिंतन करती जो भल पाती सेवा करती कीर्तन करते नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कीर्तन जप करती से माने निश्चित रूप से मन अशांत विक्षिप्त विचलित ए मन संसार भूमि मन नरका भूमि जो जीवन गति सब किसी डाइवर्ट कन्वर्ट हो परमात्मा प्रति निश्चित रूप तेणु चैतन्य महाप्रभु कलिजुग पावन अवतारी प्रकट हो कहले तेणु आम कौन कर दरकार साधु मान साधु मुख्य हरिकथा यही मात्र चाहिए साधु मान मुख विगलित भगवान को विजयती कथा को शुणा और सत्संग भितर हरिनाम करिया हरिनाम करिया हरिकथा श्रवण करिया यही दुटा जब करवा जीवन कल्याण हो से गुरुवर्ग कृपार आदेश को आम सत्संग व्यवस्था करुचे प्रति मासरे आम मठे तेणु समस्त भी सबुदिन निमंत्रण समस्त सपरिवार आसतु बस भगवान व्यवस्था कर भगवान आज तो दाता मान ना पाया पड़ो ना कौन आज विशेषकर गत थर तो कराइला आज जो सत्संगर जो प्रसाद व्यवस्था कर
आत्मार खाद्य जहाँ भी बस खाद्य प्रसाद भगवान कर माध्यम कर प्रसाद व्यवस्था करते आमर सतीर्थ आमर प्रमोद प्रभु सी कर भी मंगल हो तेणु यहाँ कि ना तो देख पवित्र चतुर्मास्य चलती पवित्र मास चलती से वैष्णव डाकी भक्त डाकी भगवान भगवान को निवेदित अधरामृत प्रसाद परिवेशन करा ये तो सुकृतिवान पुरुष मान विचार परिपंथी कार्य ये तेणु भगवान समस्त भी प्रेरणा दिंतु जदि किए सज्जन था प्रति मस करेंगे जदि को मस न कर मठ कर किसी असुविधा नहीं माधव ही कर तेणु ये आमर तरफ ये घोषणा करा भगवान व्यवस्था कर भगवान व्यवस्था करुँच क्या भर प्रेरणा दिखती सी करें ही मंगल हम समस्त मंगल कहीं समस्त आम प्रसाद पाए आम भर जो भक्तिर क्रिया हम ए जी दिखती ना किसी लाभ मिले तेणु से भोका नदी चतुर अच्छा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे घंटे समय थे 12टा सर बर्तमान कौन कर समन प्रश्न रुद्र प्रभु प्रसंग सर प्रश्न करिए आमर काली प्रश्न करते जड़े प्रश्न पड़े कले परीक्षित महाराज स्त्री किए परीक्षित महाराज स्त्री किए मन पके लास्ट पर जाए कहला इरावती ना अच्छा कौट टी शुणी दौरान तो टी शुणी दौर मन पकड़ पचार बाहर गोटे गोटे नहीं प्रसंग जो चलो प्रसंग अनुजाई प्रश्न दरकार आ जो प्रश्न उत्तर आम आध्यात्मिक कल्याण भजन पुष्ट हो से प्रश्न करिया दरकार प्रश्न ताकू कहा जी सुखदेव परीक्षित प्रश्न कले सुखदेव से प्रशंसा कले बढ़िया मैंने एत प्रश्न कर अरे प्रश्न द्वारा संसार कल्याण हो प्रश्न कौन करते मरिया जाऊँगी 7 दिन भर मरी मरिया पूर्व कौन कर एक प्रकार कौन अनुष्ठान अच्छी जहाँ जाजन कले मोर मनुष्य जीवन सार्थकता हो मरी तो मरी मरिया पूर्व कौन करी मरी एक प्रकार प्रश्न प्रश्न कहा प्रशंसा कले भाग सृष्टि कह प्रश्न करूँ कहते कहते 15 मिनट माइक्रोफोन महाराज मु गोटे प्रश्न बाहर पचार माने भूषण तो किए होइतिले आ काठारु से अभिशाप पाइले ये सब प्रश्न प्रसंग भूषण गाको किए होइतिले आ ये धृतराष्ट्र माने भूषणिका तो रामायण आ किए होइतिले काठारु से अभिशाप पाइले अमूल्य प्रश्न अच्छी कि पर कह भागवत कथा चलती रामायण प्रश्न कर हम हम तार उत्तर अच्छी देवा हाँ हाँ महादेव अभिदेव महादेव अभिशाप देते भूषणिका पूर्वजन कौन थे जयंती काका प्रश्न भल प्रश्न रामायण प्रश्न भूषणिका को रामायण भक्ता गरुड़ को बुझे ठाकुर स्वयं गरुड़ पकड़े तक महाराज भागवत रे कहले जे माने पुतना को कृष्ण अल्प समय भीतर उद्धार करदे गजेंद्र मठरे भी गजेंद्र को अल्प समय भीतर उद्धार करदे किंतु अजामिल को कहीं से पठेले हरिद्वार को से भागवत पाठ कले आ किछि वर्ष पर उद्धार कले एमाने तो दुई जन को बहुत अल्प समय मध्य उद्धार कले पुतना पुतना डायरेक्ट भगवान पाक आस सीधा कृष्ण स्पर्श कले सी स्पर्श कले आ स्पर्श जे कर सुगंध हो पवित्र हो गला गजेंद्र सीधा जगदीश को डाकी कि अजामिल भगवान डाक न पुत्र को डाकी अजामिल पुत्र को डाकी पुत्र को अवश्य नाम भाव से कहला तेणु पुत्र को डाकिया द्वारा कौन है वैष्णव दर्शन है
विष्णुदूत दर्शन कले पुत्र पचार से नारायण डाके भगवान का नाम नारायण मना ना किंतु पु गुड़ा कि से भगवान डाकी ना गजेंद्र पु गुड़ा कि ना गजेंद्र भगवान डाकिले जगदीश डायरेक्ट भगवान डाकी पुत्र डायरेक्ट कृष्ण स्पर्श कर लक्षण अलग कि ये जो अजामिल कौन कले सीधा कौन कले पु को डाकी विपद समय पु को डाकी भगवान नामटा सुंदरवस्थ नाम था पु ना नारायण तेणु नारायण चार जन विष्णुदूत आसीगले विष्णुदूत सहित जमदूत मान से भाग धर्म कथोपतन होती जमदूत मैंने परास्त चलीगले ये बसिक जुईरे शुई शुणुले विवेक प्रकट होगा तेणु प्रभुपाद कहते जीवन व्यापी पुत्र उपचार जो नारायण नारायण डाकुले खाइले बसले उठिले बसले भगवान न डाक पु को डाकुले तेणु पु उद्देश्य जो भगवान का नाम से उच्चारण कले शेष मुहूर्ते वैष्णव दर्शन मिलला आम प्रभुपाद कहते तेणु वैष्णव दर्शन मिलला से साधन उदार साधु दर्शन कलापर ही वैष्णव दर्शन है ही जड़े सद्गुरु आश्रित है जड़े साधन भजन कर 10 वर्ष साधन करा पड़ा कौट जा उत्तराखंड साधन करा से जहाँ थे संसर्ग दोष आसला पूरा नष्ट सदाचार नामना सदाचार संसर्ग दोष दूषित कहला जिते ब्राह्मण कुल जन्म होता जिते माछी मकार कर सबकि पवित्र थे सब वेद जानते शास्त्र जानते सब करते कि गोटे विटपी नारी सहित गोटे उल्लग्न अवस्था गोटे मध्यपस्थित रति क्रीड़ा को दर्शन कर चित्त विगलित होगा आज से विषय बेसार चिंतन कर सब सदाचार नष्ट हो जिते प्रकार धर्म पुण्य था जिते धर्म था जिते पवित्र था अमृत हांड जो विष पड़े विष था अमृत हांड विषय तेणु जिते सब थिला से किसी काम लगे सब नष्ट होगा नष्ट सदाचार कहला सब सदाचार नष्ट होगा सब से विषय बेश्या चिंतन ही कले सी मिट भी नारी चिंतन करी शेष निज धर्मच्युत हो गले आमिष भक्षण कले मिथ्या कहले चोरी कले विभिन्न प्रकार अपकर्म कले जमी संग कर रंग आसला चढ़ीगला सब नष्ट होगा किंतु जो करते किसी काम थिला शेष समय महात्मा दर्शन होती पुअड़ा को नारायण ना दे कहते नारायण नाड़ दिगला सदगति भल कम फल भी मिल खराब कम फल भी मिल कि भल कम बेले हरे कृष्ण प्रभु मु गोटे प्रश्न आपको पचारि कहतु आम जिते संसार जिते जीवात्मा आसती आप जमी कहले स्वामी मातृपेटे 12 वर्ष धरी समय तो ये कलिजुगर ये मनुष्य जीवात्मा केमी पार में भोग सागर से व्याख्या कहते बढ़िया प्रश्न कहीं आम तो हूँ सुखदेव गोस्वामी नुह आम जन्मजात शीत महापुरुष आम सब बद्ध जीव निजर प्राक्तन कर्म विभाग आम सब जन्म होचे किए पुरुष किए स्त्री किए शूद्र किए विप्र किए धनी किए गरीब विभेद चलती तेणु समस्त कल्याण करने समस्ते कर्मचक्र बांधी वरिष्ठ कर्मणा गति कहला ये कर्मचक्र समस्ते बांधी कर्म क्या छाड़ी समस्ते भोगिया बाध्य तेणु सब किसी कलिर एकमात्र जो आम जो स्थिति भाग जो वर्णना कराई आमर परमायु कम अल्पायु आम मैंने आमर कौन सदाचार ना आमर मंदभाग्य आम मैंने सत्संग वंचित होचे आम मैंने विशेषकर आम चित्त विगलित सब विचलित हृदय विभिन्न प्रकार रोग ग्रसित होचे आम कौन शास्त्र पढ़ाई आम मेधावी ना धी ना ज्ञान ना समय ना बुझीपर आम तेणु यही प्रकार लोक मान कल्याण करने कौन कहला परिणाम करी हरिकथा शुणापी शास्त्र महाप्रभु वर्णना कले व्यासदेव वर्णना कले एकमात्र सत्संग आवश्यकता रही साधुसंग गोटे एकमात्र मार्ग सत्संग जब आम कि समय व्यतीत करवा से सत्संग जो आमको लाभटा मिल गोटे मुहूर्त सत्संग फल सहित जगत में कौन वस्तु से तुलना करादी अतुलनीय कहुई तेणु सत्संग एकमात्र भगवान रामचंद्र वनवास करते सत्संग वनवास करते तेणु प्राय प्रति जुगरे प्रति कल्परे सब महात्मा प्रकट होती सत्संग सत्संग कौन हम आत्मार खाद्य मिल संसार आम जहाँ भी करुचे चमड़ार खाद्य सब संसार जहाँ भी कर्म करुचे जहाँ भी सब किसी देखा जाऊँगी नाटकबाजी सब किसी धंदा सब किसी ये खाली पंचभूत शरीर पर सब कराଯାଉଛି किंतु आपको जिते सजेले जिते खुआले जिते सुख देले मरवाटा मर किंतु अविनेश्वर तत्व गोटे अच्छे आत्मा जार मृत्यु ना जी अग्नि बुड़बनी निआरे बुड़बनी पानी बुड़बनी से जीवात्मा हूँ आम स्वरूप आत्मा जब तार खाद्य होची हरिनाम हरिकथा सत्संग परमात्मा अनुसंग यहाँ निहाती करा दरकार तेणु परीक्षित मत से प्रश्न करते मुझे कौन करी कहूँ से 3टा कथा सुखदेव कहले तुम खाली श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छतव्य
तुम जदि निर्भीक भाव मृत्युवरण करने चाहूच संसार उद्धार होगा चाहूच ताहले तुम गोटे काम कर भगवान कथा श्रवण कर भगवान का नाम कीर्तन कर आ भगवान को स्मरण कर ଏତିକିରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏଇ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଭଗବତ नाम ପ୍ରାପ୍ତି कीर्तन कली जुग एकमात्र हूँ हरिनाम भगवान नाम कीर्तन कर ये सब पावरफुल पाठ आमर कौटी हिमालय जावा दरकार ना कौटी जा पड़ी न खाई न कि पेट को शुखे सब आवश्यक ना निजर कर्तव्य कर्म करूँ अवश्य कार अपकार करवानी कार क्षति करवानी क्या कंदेवानी क्या उद्वेग देवानी आमर कर्तव्य कर्म आम परिवार आम समाज आम जिते कर्तव्य करवा कि प्रति मुहूर्त ये क्षण नीत उत्तम श्लोक बार्ता प्रति मुहूर्त जिना भगवान कथा को चिंतन कर शुणी पार्था हरिनाम कर सब मुखरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हे गोविंद हे अच्युत हे जगन्नाथ नियम दरकार सब करवा ना आम भगवत नाम उच्चारण कर जेकोसी कर्म कर से कर्म सफलता मिले हरे कृष्ण हरे हरे प्रश्न नहीं 15 मिनट 5 मिनट ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? रोज करिए महाराज जी दंडवत प्रणाम मोर प्रश्न है जे पूर्वर साधु संत जो कीर्तन कर गाँ जगह जाऊँगी बहु पापी भी उद्धार पाई संगे संगे से भक्त होते कि बर्तमान बहु आड़े कीर्तन हो साधु संग हो प्रभाव पड़ूनी मो निज कथा कहूँ से अनुभव कर बढ़िया प्रश्न पूर्व कीर्तन कराला लोक मैंने कीर्तन शुणी सब अनुप्राणित होते परिवर्तन होते बर्तमान बहुत कीर्तन होते परिवर्तन बर्तमान ड्रम बाजुला मृदंग बाजुला शुण बर्तमान जो कीर्तन पूर्वे जो परिवेश शुद्ध थिला एक परिवेश शुद्ध खाद्य संयमता थिला सबकि शुद्धता थिला संघ भी से प्रकार शुद्धता थिला इष्ट गोष्ठी होता मठ मंदिर में जो मैंने कीर्तन करते से लोक देखाना कीर्तन करते से प्रकृत में भगवत चिंतन तल्लीन हो से प्रकार आस्वादन कर कीर्तन करते तेणु से मुखर उच्चारित कीर्तन प्राण थिला तेणु से प्राण प्राण माने हृदयस्पर्शी से प्राण मर्मस्पर्शी से प्राणस्पर्शी मुख विगलित से कीर्तन से कथा को शुणला लोग परिवर्तन होते बर्तमान जो कथा कीर्तन से नाम से कथा चलती कि जीवन ना प्राण ना कहीं आम किसी निष्ठार अभाव हो जो मैंने श्रवण कर प्रकार आस्वादन कर देखुच के महाराज से तो बजाऊँ दी चार्टा अधिक नहीं आसे माने केत अनुरोध कर कीर्तन करेंगे ड्रम दी चार्टा अधिक नहीं आसे मृदंग पसंद नहीं पार ए लोक भी चाहते से रिमिक्स दरकार एम्यूजमेंट दरकार लोक भी चाहते किसी आनंद दरकार जी किंतु परिवर्तन भी चाहूँ से कीर्तन कीर्तन पछ पछ आसी मठ सहित जोड़ी कीर्तन चलती नगर कीर्तन कांग्रेगेशन चलती नगर कीर्तन चलती कीर्तन पछ पछ आसी विग्रह पाखे जोड़ी हो से अनुष्ठान सहित जोड़ी हो आमर कौन कर कीर्तन कर आनंद खाई पहुँच सब ना जार संस्कार करा संस्कार करा तेणु देखा गले उभय पट भी सब रोचे आ पापी तापी उद्धार तो होती शुणला मात्र उद्धार होती मान ना उद्धार हवा कथा अलग कि भक्ति मार्ग आसाटा अलग पापटा नष्ट होगा शुणला कि शुणला पाप से नष्ट आउ तो पाप कर तेणु से सत्संग आवश्यकता रही हरिनाम कीर्तन कराऊँच ए पापी तापी सब उद्धार हो कथा पाप नष्ट होप नष्ट हो किंतु पाप ताप नष्ट होला पर तो आउ थे आसवा दरकार तो पति सत्संग करवा दरकार तो शुणा दरकार गंगा को गले गंगा हूँ पति पावनी पाप विमोचन शुणी गंगार अवगान कले डुब पकड़े आसिले आम पूरा आसला घर को आसु आसु टेस्ट लो लो पूरा धरिया माछड़ी धरी घर सब पाप जहाँ नष्ट होता पाप तो नष्ट होता कि आउ थे पाप कले ना अजामिल पाप करना पूर्व पाप करते जो शुणिले वैष्णव मुखर सत्संग है जो सीधा चल उत्तराखंड घर को फेरना सी आमर जो कीर्तन जो शुणुचे आम आ कि करूँ कीर्तन शुणला कीर्तनकारी मान संग लाभ करवा दरकार विशेषकर सत्संग करवा दरकार कथा शुणा दरकार जार कीर्तन शुणुचे तार विषय शुणा दरकार सत्संग आवश्यकता रही जपमाला प्राक्टिस माला आना ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ଅଛି? हरे कृष्ण प्रभु
କଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସଂକୁଚିତ ହୁଏ ନା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ? ଭକ୍ତି କଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସଂକୁଚିତ ହୁଏ ନା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିନ୍ତାଧାରା କାହାକୁ କହୁଛ? ପ୍ରଥମ କଥା କୁହ, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୌଣସି ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିନ୍ତାଧାରା କୌଣସି ବି ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି କର୍ମକୁ ନେଇକି ହେଲା, ଡେଲି ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇକି ହେଲା, କିଛି ବି। ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ସଂକୁଚିତ ହେବ, ପ୍ରସାରିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଅନୁକୂଳ ୱେରେ ହେବ, ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ହେବ, ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ, ଆଜ୍ଞା। ଅନୁକୂଳ way। ହରେ କୃଷ୍ଣ। आप प्रश्न ଅଛି? 12:15 ହେଇଗଲାଣି। ଓକେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାହାରି ଆଉ? ଯଦି ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ସମସ୍ତେ ମାଳା ଆଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଳା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାଳ ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଟେକିବେ। ମାତା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁନିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। No more question. This question. Okay. All question. So you satisfied? You also satisfied, huh? ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାର ଉତ୍ତର ସମୟ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। यही तो प्रश्न है। जग लोभ चापरंग लाभ मन्यते नाधिक तत्व कौन पाइला और पाया पे अवकाश नहीं हुई। तेणु भगवान पर कथा सुनले बस आगे सुनिया दरबार सुन କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ प्रधान प्रश्न ओ प्रैक्टिस वाला ना ला बुढ़ाड़ा प्रश्न करछन सब धर दियो जो माने आनछन जो माने आननांती हाथ टेकंतु प्रैक्टिस वाला दे। हरे कृष्ण। ଯେଉଁମାନେ ଜପମାଳ ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଆପଣ ଜପମାଳ ଆଣିନାହାନ୍ତି? କୁଞ୍ଜ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ମଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ରୁଦ୍ରପ୍ରଭୁ କାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲାନି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି?